Hello students, welcome back to my channel. We have already solved some MCQ type questions from chapter solid state and P block. Today we'll start with the new chapter, that is solutions. In this particular video, we'll solve 5 MCQ type questions of chapter solution. So let's get started. Our first question is, which of the following is dependent on temperature? आपसे पूछ रहा है कि जो आपको 4 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं या क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनमें कौन सी एक ऐसी है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? ओके, देखते हैं। मोलैरिटी, अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखें, मोलैरिटी वी नो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter, 1 liter volume of solution in liter. ओके, तो हमें पता है कि जो आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या होता है? वॉल्यूम आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड सिंस वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो आपका पूरा मोलैरिटी को हम कह सकते हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो आउट ऑफ 4 हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो मोलैरिटी होगा। ओके, यू कैन राइट इट डाउन कि मोलैरिटी is a function of temperature. It's a function of temperature. Why? As volume depends on temperature. Depends on temperature. ओके, मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता है इसमें सिर्फ मोल्स इन्वॉल्व होते हैं। मोल आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। वेट परसेंटेज में वेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैलिटी की बात अगर हम करें तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ योर सॉल्यूट इन केजी। ओके, तो इन सब में से ओनली वन, दैट इज मोलैरिटी इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट का आपका मोल फ्रैक्शन पूछा इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. अगर आपके पास एक 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें जो आपने सॉल्यूट मिलाया है, ठीक है, उसका आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है. क्वेश्चन इट इज सेइंग 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, okay, is equal to, means in 1 molar aqueous solution 1 mole of solute, 1 mole of solute is present in 1 kg of H2O. Okay, so 1 mole of solute is present in 1 kg of H2O water. Now we'll convert this 1 kg of water into mole. So what is mole? Given mass upon molar mass. So 1 kg means 1000 gram. Okay, 1 kg is 1000 gram divided by molar mass is 18. This will get cancelled out. Then 1000 by 18. This is your number of moles of water. Okay, ये आपने water का mole, आपने 1 kg of H2O को moles में convert कर लिया. So this is your mole of your water. Okay, now we'll calculate mole fraction of solute. So mole fraction of solute equals to mole of solvent. Okay, sorry, mole of solute. Sorry, it's not represented by n. It's not represented by x. It's represented by n. यहाँ पे भी आप n कर लीजिए. Okay, mole is represented by n and mole fraction is represented by x. So mole fraction is n mole number of solute, number of moles of solute, that is n solute divided by n mole of solute plus mole of solvent, that is water. Water is your solvent here. So it's 1. ठीक है, 1 दिया हुआ है आपका 1 और आपका ये 1000 by 18 है. 1000 by 18. When you will solve this, you will get 18 divided by 1018. इसको आप solve करेंगे, you will get 0.01768. Approx निकालेंगे 0.018. So which is the right option? Option B. Okay, option B is the right option. यानी जो आपका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में वो कितना है? 0.018. ओके,
Let's move to the next question. Next question is saying the vapor pressure of two liquids P and Q are this and this respectively. The total vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 moles of P and 3 moles of Q. यानी अगर आप 3 मोल ऑफ P and 2 मोल ऑफ Q को मिक्स करेंगे तो जो आपका मिक्सचर बनेगा, ठीक है, उसका आपको टोटल वेपर प्रेशर बताना है. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हम राउल्स लॉ के थ्रू सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स राइट फर्स्ट व्हाट इज योर राउल्स लॉ. राउल्स लॉ इज P total equals to mole fraction of A, या सॉरी P, vapor pressure of P plus mole fraction of Q. ये आपका होता है राउल्स लॉ. ओके, लेट्स राइट हियर P total equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ, जब P निकालेंगे तो क्या होगा, मोल ऑफ P that is 3 upon mole of P plus mole of Q that is 3/2. वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, इट्स 80. ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ Q निकालेंगे, मोल ऑफ Q that is 2 and mole of P plus mole of Q that is 3 plus 2 and vapor pressure कितना दिया है, 60. Let's solve this. इसको आप सॉल्व करेंगे. This is 1/18, 1/12. This is 48 plus 24 that is 72 torr. आपका जो P टोटल हुआ वो कितना हुआ, 72 torr. Which is the right option? Right option आपका A है. ओके, इसमें आपको पता चला कि जब आपने मिक्सचर बनाया है A, P एंड Q को मिक्स करके, तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, 72 torr. और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा किससे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज P and PB are the vapor pressures of pure liquids A and B respectively. ठीक है, PA and PB आपका वेपर प्रेशर है A and B का, of an binary ideal solution. Okay, binary solution means a solution which is composed of two components. इसमें दो component है. If XA represents the mole fraction of component A, ठीक है, the total pressure of the solution will be. इसको भी आप राउल्स लॉ से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट लेट्स राइट द राउल्स लॉ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. So Raoult's law is P total equals to mole fraction of A, vapor pressure of A, mole fraction of P, vapor pressure of P. Let's mark this as equation 1. Okay, we know आपके किसी भी मिक्सचर में जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन सब का अगर आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो सम होगा वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा. ओके, सो अगर हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करें, फॉर बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1. ओके, यहाँ से अब देखिए, फर्स्ट में आपको ये दिया हुआ है, x से दिया हुआ है, p दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस x भी नहीं दिया है. तो x भी आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से x भी इक्वल्स टू 1 minus xa. Mark it as 2. Now substitute 2 in equation 1. Therefore, from equation 1 and 2, we get p total equals to xa PA. ठीक है, आपका वेपर प्रेशर PA है तो PA लिखते हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. एंड XB इज 1 minus XA and vapor pressure is PB. ठीक है, now let's solve this. It's XA PA क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में, PB minus XA PB. ओके, PB
आप यहाँ से इससे और इससे यू कैन टेक x से कॉमन, तो जब आपने x से कॉमन लिया दिस इज PA माइनस PB, ये है आपका टोटल प्रेशर जो आपको निकालना था। ओके, दिस इज योर टोटल प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस हमेशा राउल्स लॉ के हेल्प से करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, ये आपका टोटल प्रेशर आ गया जो भी आपका सोल्यूशन बना था। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओके, सो फॉर आइडियल सोल्यूशन, for ideal solution we know कि जो आपका मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी होगा वो 0 होता है एंड मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम वो भी 0 होता है। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये है आपके आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन। ठीक है, लेट्स मैच द ऑप्शन, कौन सा आपका मैच कर रहा है? फर्स्ट नो इट्स नॉट मैचिंग, सेकेंड ऑल्सो, थर्ड आपका नॉट इक्वल टू 0 है बट कंडीशन आपका इक्वल टू 0 है, ये भी आपका नहीं होगा। लास्ट डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तो आपका आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये आपका जो डी वाला है वो आपका करेक्ट सोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन है, तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सोल्यूशन देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए या आपका उसको सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन मेल मी दैट क्वेश्चन, आई डेफिनेटली मेक वीडियोस कंसिडरिंग दैट क्वेश्चंस आल्सो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपके टर्म 1 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, so please share with your friends also, and thank you so much for watching. Thank you.